جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تمام سامعین و ناظرین، بالخصوص جو میرے ویڈیوز کو دیکھا کرتے ہیں، میرے چینل پر میں جو ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اس کو دیکھا کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شروع رمضان المبارکہ سے یعنی یکم رمضان المبارکہ سے آج تک آپ ہر دن ایک نئے عنوان پر آپ میری ویڈیو دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں۔ کبھی میں نے ویڈیو فضائل رمضان پہ بنائی، کبھی روزے داروں کی فضیلت پر بنائی، کبھی تراویح کے مسئلے پر آپ نے ویڈیو دیکھا، کبھی روزے کے ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ بھی آپ نے دیکھا، اور دیگر صلہ رحمی کے اور دیگر اعتکاف کے بارے میں، یعنی ہر دن آپ نے ایک نئے عنوان سے ویڈیو دیکھا۔ تو اسی طرح آج میری اس مختصر ویڈیو کا عنوان ہے صدقے کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ جب تک انسان کو کسی چیز کی فضیلت کے بارے میں پتہ نہیں چلتا وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اور جب تک کہ کسی گناہ کا عذاب نہیں معلوم ہوتا وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے سخاوت اتنا کثرت سے بہتا جس کی کوئی حد نہیں۔ عام دنوں میں بھی سرکار کثرت سے صدقہ خیرات کرتے، لیکن جب رمضان المبارکہ آ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بہت کثرت سے صدقہ دیا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے آج میں صدقے کی چند فضیلتوں پر مبنی احادیث پاک پیش کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بے انتہا معلومات حاصل ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میرا کوئی امتی ایک چھوہارا یا ایک نوالا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو ایسا پالتا ہے جیسا کوئی انسان بکری کے بچے کو یا گائے کو پالتا ہے۔ تو بالآخر وہ بکری کا بچہ اور گائے کا بچہ بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایک چھوہارا ایک نوالا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ بالآخر وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک صدقے کی فضیلت ہے۔ ایک نوالا یا ایک کھجور یا ایک چھوہارا ہم نے صدقہ کیا تو اس کا اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بے شمار فضائل ہیں صدقات اور خیرات کے، صرف چند حدیثیں میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے، جو صرف اللہ کی رضا کی نیت سے صدقہ کرتا ہے، ریاکاری کی نیت سے نہیں، دنیا کو دکھانے کی نیت سے نہیں، بلکہ جو صرف اللہ کی رضا کی نیت سے صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ دینے والے کے اور جہنم کے درمیان ایک آڑ بن جاتا ہے، ایک دیوار بن جاتا ہے۔ صدقے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صدقے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، صدقے میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آج ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بری موت سے محفوظ فرما، یا اللہ مجھے بری موت سے میری حفاظت فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مژدہ جاں فضا سنا رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اگر تم خاتمہ ایمان پر چاہتے ہو، اے میرے امتیوں تم اگر بلاؤں سے حفاظت چاہتے ہو، اے میرے امتیوں اگر تم بری موت سے حفاظت چاہتے ہو، بری موت سے بچنا چاہتے ہو، حادثات سے بچنا چاہتے ہو، تو سرکار فرماتے ہیں اے میرے امتیوں کثرت سے صدقہ دیا کرو،
सदका देने से हादसात से हिफाजत होती है, सदका देने से बुरी मौत से हिफाजत होती है, और सदका देने से ईमान पर खातिमा होता है। कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी बरकत है सदक़े की। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सदका बलाओं को टालता है। ज़मीनी बला हो या आसमानी बला हो, सरकार फरमाते हैं सदका बलाओं को टालता है, और सदका देने वाले के गुनाह भी अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, शैतान जो इंसान का अदली दुश्मन है, वो हमेशा इंसान के दिल में वसवसा डालता है, सदका देने से माल कम हो जाएगा, खैरात करने से माल कम हो जाएगा। लेकिन ये शैतान जो हमारा दुश्मन, ये वसवसा डालता है। लेकिन अल्लाह के महबूब क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। अल्लाह के रसूल कसम खा के फरमाते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, सदक़े से माल कम नहीं होता बल्कि सदक़े से माल बढ़ जाता है। शैतान तो वसवसा डालता है, सदका खैरात करने से माल कम होता है, लेकिन सय्यदुल अंबिया फरमा रहे हैं, सदक़े से माल कम नहीं होता, बढ़ जाता है। इसीलिए उलमा इरशाद फरमाते हैं, मुशाहिदा भी ये है, सदका देने से माल बढ़ जाता है, माल में बरकत होती है, माल में फिराकी होती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और इसके साथ हर नमाज में आज मुसलमान दुआ करता है, तहज्जुद में दुआ करता है, इफ्तार में दुआ करता है, हर नमाज में दुआ करता है, या अल्लाह मेरी उम्र में बरकत अता फरमा, मुझे दराजी उम्र अता फरमा, मेरे रिज़्क़ में उसत अता फरमा, मेरे रिज़्क़ में फराखी अता फरमा। लेकिन अल्लाह के रसूल एक अजीम नुस्खा अपने उम्मतियों का अता फरमा रहे हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम अपनी उम्र में इजाफा चाहते हो, अपनी उम्र में बरकत चाहते हो, अपनी रिज़्क़ में बरकत चाहते हो, तो सदक़े को मामूल बना लो। सदका देने वाले के रिज़्क़ में इजाफा होता है, सदका देने वाले के रिज़्क़ में इजाफा होता है, फराखी होती है, तंगदस्ती ख़त्म होती है, और सदका देने वाले की उम्र दराज होती है, उम्र में बरकत होती है। ये कौन फरमा रहे हैं? सैयदुल अंबिया, जिनका मर्तबा है बादत बुजुर्ग खुदा तू ही मुख्तसर, बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, यानी जिनका मर्तबा खुदा के बाद है वो सैयदुल अंबिया फरमाते हैं। रिज़्क़ में सदक़े से रिज़्क़ में इजाफा होता है, सदक़े से उम्र में इजाफा होता है, सदक़े से बलाएं टलती हैं, सदक़े से हादिसात से हिफाजत होती है, सदक़े से बेशुमार बरकतें हासिल होती हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सदका देने से अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा यानी गज़ब ठंडा होता है। गुस्सा अल्लाह तबारक व तआला का, गज़ब जो है वो ठंडा होता है, और इससे नफ्स की इस्लाह होती है, दुनिया की मोहब्बत कम होती है, माल की मोहब्बत कम होती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब आपने चंद हदीसें सदक़े की फजीलत की आपने सुन ली है, लेकिन अब सोचने की बात यह है, सदका देना किसको है? तो ऐसे तो आप किसी को भी सदका कर सकते हैं, पड़ोसियों में भी सदका कर सकते हैं, दोस्त अहबाब में सदका कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं नहीं, दुनिया का कोई आलिम नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सदक़े की तो फजीलत है, लेकिन सदका देने के सबसे अव्वलीन हकदार, यानी तुम जिसको सदका दे सकते हो, सबसे पहले जिसका नंबर आता है वो आपके करीबी और गरीब रिश्तेदार हैं, जो सदक़े के मुस्तहिक़ हैं। लिहाजा मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, घरों पे मांगने वाले बात गुर्बत का नाटक करके भी आते हैं, और अपने आप को गरीब बताकर आपसे सदका खैरात मांगते हैं। रोडों पर मिल जाएंगे, मस्जिदों पर मिल जाएंगे, उनकी गुर्बत के बारे में, उनकी दौलतमंदी के बारे में आप नहीं जानते, उन्होंने पेशा बना लिया है। पेशावर फ़कीर मिलेंगे, पेशावर गरीब मिलेंगे, जो ऐसा नाटक करेंगे, गुर्बत का उनके नाटक को देखकर आप उनकी इमदाद करेंगे। लेकिन देखने में आता है ऐसे ऐसे भिखारी भी हैं जो सदका खैरात लेते लेते घर बना लिए हैं, बिल्डिंगें बना ली हैं, गाड़ियाँ खरीद ली हैं। लिहाजा बाहर के गरीबों पर भरोसा करने से बेहतर है हर इंसान अपने ख़ानदान के बारे में जानता है, नहीं जानता है तो उसे जाने, वो पता चलाए उनके ख़ानदान में गरीब कौन है, उनके ख़ानदान में परेशान हाल कौन है, उनके ख़ानदान में कौन कर्ज़ों में डूबा हुआ है, उनके ख़ानदान में किस घर में बच्चियां बैठी हुई हैं, उनके ख़ानदान में कौन है जो आला तालीम हासिल करना चाहता है लेकिन गुर्बत की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सकता, उनके ख़ानदान में कौन ऐसा गरीब रिश्तेदार है जो बीमारियों में फंसा हुआ है। लिहाजा अपने गरीब रिश्तेदारों पर नज़र डालें और सदका उनको दिया करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब ख्याल ये करना है, सदका तो दें,
लेकिन ऐसे ना दे कि उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुँचे, उनकी दिल आज़ारी हो। आप ये कह के ना दे ये हमारी तरफ से सदका है, कबूल कीजिए, तो सामने वाले को तकलीफ होगी। गरीब है लेकिन आपका रिश्तेदार ही है, अगर आप सदका कह के देंगे तो उसके दिल को ठेस पहुंच सकती है। लिहाजा उलमा फरमाते हैं आप ये कहकर दें हमारी तरफ से आपके बच्चों के लिए ईदी है, हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है, ये कहकर देंगे तो उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और उसकी इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचेगी। लिहाजा हदिये के नाम पे, तोहफे के नाम पे आप जो मदद करना चाहते हैं सदक़े की मदद कर सकते हैं। दिल में नीयत रखे सदक़े की, लेकिन ज़बान से हदिया है, तोहफा है, ये कहकर अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक हदीस में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अगर तुम गरीब मिस्किन को सदका दोगे तो तुम्हें सवाब सदक़े का मिलेगा, लेकिन गरीब रिश्तेदार को दोगे तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुगना सवाब अता फरमाएगा। दुगना यानी एक तो सदक़े का सवाब अता फरमाएगा और दूसरे सिला रहमी का सवाब अता फरमाएगा। सिला रहमी क्या है, उसकी फजीलत क्या है, यह आप गुज़िश्ता वीडियो में सुन चुके हैं। इसीलिए अगर किसी गरीब को देंगे तो सिर्फ सदक़े का सवाब मिलेगा, लेकिन अपने गरीबी और गरीब रिश्तेदार को देंगे दो सवाब अल्लाह ता फरमाएगा, एक सदक़े का और दूसरे सिला रहमी करने का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक आखिरी बात कह के अपनी बात ख़त्म करना है। आप अपने मरहूमीन के नाम से भी सदका कर सकते हैं। अगर किसी के वालिदैन मरहूम है या किसी के दादा दादी मरहूम है या कोई पीर व मुर्शिद मरहूम, जो भी आपके ख़ानदान में आपके मरहूम है या आप जिसके नाम से भी आप सदका करना चाहते हैं उनके नाम से सदका करें। अल्लाह तबारक व तआला उस मरहूम को जितना सवाब अता फरमाएगा, देने वाले को भी उतना सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। मसलन अगर आप 1000 रुपया, मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, 1000 रुपया अपने मरहूम वालिदैन के नाम से इसाले सवाब करते हैं, सदका करते हैं, तो वालिदैन को भी 1000 रुपया सदका देने पर अल्लाह तबारक जितना सवाब है वो अता फरमाएगा। उसके साथ साथ आपके नाम अमाल में भी 1000 रुपया सदका करने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। लिहाजा कोशिश ये करें माह रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से आप जहाँ रोज़े रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान कर रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात को अपना मामूल बना ले, क्योंकि सदक़े की फजीलत आप सुन चुके हैं। इंशाअल्लाह हम रमज़ानुल मुबारक में हो या आम दिनों में जितना हो सके सदक़े की आदत को अपनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फजीलतें बयान फरमाई सदक़े की, उन फजीलतों से अल्लाह तबारक व तआला हमें सरफराज फरमाएगा। आप तमाम से गुजारिश है, बिलखुसूस उन नाज़रीन और सामीन से जो मेरे चैनल पर पहली मरतबे आए या मेरी वीडियो को पहली मरतबे देख रहे हैं, आप तमाम से गुजारिश है कि आप तमाम मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं, उससे दिन में कुछ आपको इजाफा हो रहा है, आप समझते हैं कि ऐसे वीडियो को शेयर करना आज के दौर की ज़रूरत है, तो सदक़े जारिया के तौर पर मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को, बिलखुसूस आप तमाम सामीन नाज़रीन को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और माह रमज़ानुल मुबारक में कसरत से सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमाए और हर परेशान हाल मुसलमान की परेशानी को दूर फरमाए। जितने मुसलमान बीमार हैं उन्हें शिफाई कामिला आजिला अता फरमाए और सारे आलम इस्लाम के मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए और फ़लस्तीन के मुसलमानों के अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार उनकी हिफाजत फरमाए और उन तमाम पर जितने शहीद हो रहे हैं वहाँ पर अहले ईमान, उन तमाम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम नसीब फरमाए और ख़ातिमा फरमाए, तो ईमान पर ख़ातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।